आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन हिंदू लॉ का तहत 1955 में आया है, whereas मुस्लिम लॉ का तहत it has come much before, 100 years, 200 years, 300 years in a codified form, और unwritten form में तो 1500 साल पहले आ गया है. The only thing is that ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कानून बन के आया है, ये ऐसे ही नहीं आ गया है, जिसको हम लोग आज लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बोलते हैं, शॉर्टकट में कस्टम भी बोल देते हैं. ये हमारे अंदर कानून बन के गुजरा है, कोई ऐसे आसानी से नहीं आया है. तो कानून बनने के लिए जो हमें चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, ये है हमारा हिस्टोरिकल एविडेंसेस. I would have, felt very nice about it. However, I'm Bengali by my language. My mother language is Bengali, though I'm conversant with English, and I will just mix my word. I'll mingle my word while I take forward my speeches. Well, thank you so much, Javed Raza Sahab, for inviting me as well. And this is a great conglomeration. And I would take forward from the bottom of the speech that Mr. Imtiyaz Ali Shah has left. He was discussing about Muslim Personal Law Board. Before coming straight into the case, which is pending before the Supreme Court and awaiting a hearing on 5th of May. Yes, boss. I just want to give you a brief idea about what Muslim Personal Law Board. They have also come up as a petitioner in these proceedings, which is running in Supreme Court. The Muslim Personal Law Board is a society in terms of a registration. It is a private organization. It is not a so-called a statutory board, the way the people take it. Muslim Personal Law Board is a very private organization, and I fail to see that it is very striving situation now, as that young gentleman has come up with a question that what next? What next? It's a worry. So he suggests that what next is going to come. And the worry is that there is only one serious conglomeration working in the front line for this community, and that is Muslim Personal Law Board, though it is a private organization. I would support the cause. Mr. Siddiqui will definitely take it forward, and you can do it. Apni parben to bring about a conglomeration in West Bengal where the population of Muslim is almost close to 35%. चीफ मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि मगरबी बंगाल में इंदौर स्टेडियम में 35% मुसलमान हैं. And absolutely, with the strength of the population that we have in our community, it is necessary and incumbent for us to come up with a movement that Bengal as a whole has been always known as a revolutionary state. And of course it is because of the people who live in over here. We have the blood of coming and fighting out in a revolutionary manner. So why not this time? A conglomeration of a similar nature like Muslim Personal Law Board should also be brought forward by people like you all, who are so much interested for the progress of the Muslims. This is one such situation. Anyway, this is only to suggest and I put you with opinion that Muslim Personal Law Board is a private organization, and you, me, and anybody interested can also bring about a similar situation and institution who could take forward the words of the majority Muslims from here, from West Bengal. This is one situation. The second situation that I would address is the foreword which Mr. Kapil Sibal has stated in Supreme Court. The foreword, उन्होंने पहले ही कोर्ट का ओपनिंग में उन्होंने पूछा कोर्ट को इन अ क्वेश्चनिंग फॉर्म कि मैंने मांगा था अमेंडमेंट. सही बहुत खूब. मैंने मांगा था अमेंडमेंट. बहुत अच्छा इशारा. वक्फ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मुस्लिम लाइफ. मैंने नहीं मांगा, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. बहुत खूब. मैंने मांगा नहीं. दिस इज व्हाट ही हैज स्टेटेड इन राज्यसभा आल्सो. Mr. Kapil Sibal is one of the eminent lawyers in India. We follow him, and many more has been following him. He is very learned person, and I have gone through. I had the opportunity to gone through the petition, one of the petition which has been put forward before the Supreme Court. I'm sure that this part of the petition will definitely bring about joy for all the Muslims for various reasons. I would only take up 3 articles. 3 आर्टिकल में सिर्फ पढ़ूंगा, एंड उससे ये चीज तो क्लियर हो जाएगी अपने आप में कि सुप्रीम कोर्ट इसको लाइटली नहीं लेगी और इसको अलाउ बिल्कुल नहीं करेगी जो अमेंडमेंट हुआ है. एंड आर्टिकल 26 जो स्पेसिफिक आर्टिकल है जो हमको इस वक्फ के ऊपर नजर रखने के लिए मजबूर करता है, वो है आर्टिकल 26.
आर्टिकल 29 और 30, ये 3 आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आर्टिकल 26 को अगर छोटा सा विदाउट इलस्ट्रेशन में अगर पढ़ूंगा तो आप खुद समझ जाओगे, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड वेयर इट इज स्टेज्ड टुडे। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। Article 26 of the Indian Constitution suggests and says that we have the freedom to manage our own religious affairs. Our own religious affairs. You see, though it has spoken about every Muslim, every Indians, and it applies to us also. We can manage our own religious affairs. Similarly, this goes to the other communities. The Hindus can manage the Hindus' their religious affairs, and the other religion can manage their own religious affairs. ये कहने के बाद मुझे लगता नहीं है कि पार्लियामेंट में जो अभी पावर में है, जिसका स्ट्रेंथ है, जिसका नंबर्स है, उसको ये सोच अपने आप कर देना चाहिए, जहां पे एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। जिन्होंने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया है उनका तो एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो वो मुस्लिम अफेयर्स यानी कि वक्फ के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्टिकल 26 हैज गिवन द फ्रीडम टू द पीपल हु फॉलो देयर ओन रिलीजन। आवर अफेयर्स, आवर रिलीजियस अफेयर्स विल बी मैनेज्ड बाय अस। दिस इज वन एस्पेक्ट। नंबर 2 is 29, Article 29 of the Constitution of India. It gives me interest, protection of interest of minorities. हमको प्रोटेक्शन है because we are minorities. We have the protection. हमारा जो प्रोटेक्शन, हमारा जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज का क्या क्या इंटरेस्ट है? We are minorities, one, and our interest is our religious affairs, our educational affairs, our empowerment affairs, और इसके ऊपर हमारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। We have the protection. Say a scenario brought forward before us that Waqf is going to be amended in so far certain sections or certain portions of the provisions of the Waqf Act is required to be amended for the purpose of the goodness of the act, or for purpose of the wellness of this community. Now the community has detected that this provision is ultra virus. It does not stand. ये ultra virus हो चुका है. So this is beyond the interest. This is not within the interest of the Muslim communities or the minorities. It does not taste. So it has to be eliminated. It will go. It will definitely go in the initial stage of this particular matter. Though it is not a recorded order, it is of course observed by the Supreme Court. उन्होंने ऐसा कहा कि वक्फ बाय यूजर को अंडू कैसे करेंगे? बहुत खूब, यस, इस पर वक्फ बाय यूजर को अंडू कैसे करेंगे? आप सोचिए कि एक तो हमारा जो क्वांटम ऑफ प्रॉपर्टी है वक्फ का, वो क्वांटम इतना बड़ा है कि इट इज द थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन इंडिया, थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर आफ्टर डिफेंस, रेलवे एंड देन वक्फ स्टैंड्स। इमेजिन, ये तो हमने डेवलपमेंट नहीं किया या अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगा, वो हमारी गलती है। नहीं तो इंडिया में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं होता जिसको एक झलक के लिए भी सोचना पड़ता कि हम करें तो क्या करें। ऐसा कोई अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू तो उनके लिए होता ही नहीं। सही बात। बिकॉज द क्वांटम ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग रिमेन्ड अनयूटिलाइज्ड। आज आंख क्यों पड़ा? बिकॉज द क्वांटम ऑफ द लैंड हैज बीन नॉट यूटिलाइज्ड फॉर ईयर्स। It has not been utilized, or the dispute has been invited. कि लड़ो, let's dispute over the property and let's litigate in court. Even if you go and count the numbers of litigations, you will see only Muslim litigators are, very much prevalent in court. ये practice करते करते देख रहे हैं. So basically, 26, 29 is a very protective gear in the Constitution. 30 is right of minorities to establish, administer and educational institutions. So this is also a very protective gear, जहां से ये नहीं जा सकती। ये वाला जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, ये अल्ट्रा वायरस कर दिया है, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का साथ ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ये है टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट जो हो चुका है एंड इट हैज टू बी एड्रेस। देखिए, पार्लियामेंट में जब कानून, एक बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो जब पास होकर निकलता है, तो इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं देखा जाता है कि कौन इसको चाहता है, कौन इसको। द स्ट्रेंथ इज द नंबर। नंबर, यस। आपका नंबर कितना है? मैं अगर नंबर बताऊं आज
तो राज्यसभा में इसको 128 वोट से आगे किया और 95 वोट से पीछे किया वक्फ कानून को। सो आप नंबर्स को देखो कि इट्स वेरी क्लोज। वेरी गुड। लोकसभा में इसको 200, सी द फाइट, 288 ने इसको सपोर्ट किया, अगेंस्ट में गया 232। सो इतना बड़ा देश में हमारा स्ट्रेंथ वहां पे भी कम नहीं था, बट मजबूर यह है कि ये नंबर से आगे चलता है। राज्यसभा में और लोकसभा में जो हम लोग स्पीच सुनते हैं अच्छा लगता है, एकेडमिक परस्यूट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी मिलता है, मगर वहां पे अगर कुछ चीज हम लोग को रेस्ट्रेंट करता है तो मैक्सिमम ये बिल जो है इसको एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है फॉर रिव्यू। अगर सिलेक्ट कमेटी उसको लेके कुछ भी चिंता करता है तो वो बेसिक टेक्निकल ग्राउंड्स को देखा जाता है, अदरवाइज इट विल बी सेंट फॉर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर इस बिल को जब रास्ते में चल के ये प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, इसका बीच में आर्टिकल 111 में एक स्कोप था, कोई भी नागरिक हो, इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी मुस्लिम पर्सन हो, वो एक प्रेसिडेंट को लिख सकते थे उनका रिव्यू के लिए और फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। मगर वो वाला स्टेज में हम लोग ने कुछ नहीं किया, दैट स्टेज लेफ्ट ओपन। आर्टिकल 111 को हम लोग ने यूज नहीं किया एंड स्ट्रेट अवे वी फेल्ट इट इज नेसेसरी कि वहां पे जाके कुछ फायदा नहीं, इट्स ऑल द नंबर्स, लेट्स गो टू सुप्रीम कोर्ट। 5 एप्लीकेशंस फाइल हुआ जो कि एडमिट हुआ एंड इट विल बी टेकन अप फॉर हियरिंग टुगेदर। जो भी ऑर्डर निकलेगा इट विल बी वन सिंगल ऑर्डर एप्लीकेबल फॉर ऑल 5 एप्लीकेशंस। बाकी का 70 एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया गया बिकॉज इट हैज सिमिलर व्यू एंड द कोर्ट फेल्ट, राइटली फेल्ट, कि इतना सारा एप्लीकेशन लेके आई वुड नॉट पास ऑर्डर, rather I would emphasize on the 5 applications which has been filed by greater number of peoples having great interest in the organization or institution they belong to, and it can be addressed accordingly. The greatest mudda is the participation of other community. इसको गलत तरीके से ना लें, जो भी दूसरे community के हैं they will also appreciate this point why the Muslim community people is saying the intervention of non-Muslims को हम लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि 2 लोग रहेंगे काउंसिल में कि who will be non-Muslims. The point is again constitution, the provision is provided in the constitution itself, जहां पे बोला गया I can manage my affairs, I can manage my religious affairs, and it is not specific to the Muslims, it is open to all religion, that I will not perhaps participate in your affairs also because I do not know, I'm an expert, I'm not an expert on that. Similarly, Supreme Court on the initial stage of hearing has given his view. Do you want the Muslim to participate in the Council of Hindu Trust? Supreme Court has given the view. Yes. So I have enough confidence the way the motion is taken place in Supreme Court. And Supreme Court has rightly picked up 2 vital points. One is participation of the Muslim communities in the Hindu Trust. सही बात। This is one question that has been aired before the government lawyer. And the second is work by user, you cannot undo. You see, if the concept of work by user, मैं हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, work by user है क्या? देखिए, हमारे देश तो अभी एकेडमिक वाइज और एजुकेशनल वाइज या कानून आया है, डेवलप हुआ है, ये लास्ट 70 इयर्स में काफ़ी सारा जद्दोजहद हुआ है। मगर आप अगर 200 साल पीछे जाएं तो कागजात का जो इंपॉर्टेंस है इतना इंपॉर्टेंस नहीं था सोसाइटी में। सही। आपको बहुत सारा कागजात जैसे एनआरसी सीए जो आया उसका वजह से काफी सारा धूम मचा कि भाई कैसे क्या होगा, प्रॉपर्टी का कागज नहीं है, किसी का पास कुछ नहीं है। इंडिया में कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए कि 200 साल अंग्रेज ने राज किया है और वो यहां से कुछ लेके गए हैं, जो लेके नहीं गए हैं वो तो रह गए हैं, यहां से कुछ लेके गए हैं। यहां पे कानून बनाने वाले को हमेशा सोचना पड़ेगा कि यहां पे जालियनवाला बाग हुआ था, यहां पे कानून बनाने वाले को सोचना पड़ेगा कि 1947 का रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया था, इंडिया पाकिस्तान हुआ था। यहां पे एक कानून अभी भी मौजूद है जहां पे पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को हम एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सही बात। हमारे यहां पे प्रॉपर्टी का जो उलझन है ये ऐसे नहीं बना, ये हमारे ऊपर जो गुजरा उसका वजह से बना। हमारे ऊपर जो गुजरा है उसको आप हटा नहीं सकते, एक दिन में मिटा नहीं सकते। अगर वक्फ का कानून आया है ये आज नहीं आया है,
सही बात। ये वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट से आया है, उससे पहले भी आया है जब कागजात नहीं था। आज वक्फ का वैलिडेटिंग एक्ट तो इतना पुराना है कि जिसको हम लोग कोडिफाइड लॉ बोलते हैं। बाकी सारे लॉ तो 1955 के बाद आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन हिंदू लॉ का तहत 1955 में आया है, whereas मुस्लिम लॉ का तहत इट इज कम मच बिफोर 100 years, 200 years, 300 years in a codified form, और अनरिटन फॉर्म में तो 1500 साल पहले आ गया है। द ओनली थिंग इज दैट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कानून बन के आया है, ये ऐसे ही नहीं आ गया है, जिसको हम लोग आज लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बोलते हैं, शॉर्टकट में कस्टम भी बोल देते हैं। ये हमारे अंदर कानून बन के गुजरा है, कोई ऐसे आसानी से नहीं आया है। तो कानून बनने के लिए जो जो हमें चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, यह है हमारा हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल फेजेस, वो सब चीज को लेके हम लोग कानून बनाते हैं। आज जो 200 साल पुराना वकफ है, वो जिस तरह से वकफ है उसको हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 200 साल से है, तब कागजात नहीं थे, इसीलिए उसको कहा जाता है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर इसलिए कहा जाता है कि उसमें यूजेज का हिसाब से, यूजेज को देख के हम लोग तय करते हैं कि ये वक्फ है या नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरा उर्दू बड़ा अच्छा हो गया, बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं आप वकील साहब, बहुत जबरदस्त। अचानक पूरा से हिंदुस्तान अच्छा सुन रहा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। नाउ माय पॉइंट इज, फर्ज कीजिए मेरा गांव में एक ईदगाह है। अब ईदगाह में कोई बाउंड्री नहीं है, वो ईदगाह एक कॉमन लैंड हुआ करता है जो कि 35 आदमी का एक ही जमीन है। सबने सोचा कि इसमें हम लोग ईद बकरीद और जुमे में नमाज पढ़ते हैं, वो ओपन लैंड है, डिमार्केटेड भी नहीं है, तो उसका जो यूजेज है वो यूजेज क्या है, जुमा का नमाज, ईद का नमाज, बकरीद का नमाज, या मुस्लिम कोई इंपॉर्टेंट इवेंट वहां पे हो जाया करता है। दिस इज कॉल्ड यूजेज, और इट इज अदरवाइज अ वक्फ। व्हाई? इट इज वक्फ बाय यूजर। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे जमीन आप हमें बताएं कि कितना हो सकता है जो कि कस्टमरली एक मुस्लिम पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सो हमें सेंस करना पड़ेगा कि यहां पे वक्फ बाय यूजर को आप ऐसे अंडू नहीं कर सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली सेड। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, काफी इंटेलेक्चुअली ये मैटर होल्ड किया जा रहा है। द होल ऑफ इंडिया इज लुकिंग एट इट, नॉट ओनली मुस्लिम्स, द अदर कम्युनिटीज आर एग्रेसिवली लुकिंग एट इट कि what would be the probability, what would be the next. And my brother, for you I am saying, you have come up with a question and now you will come up with the answer. You bring out of your own, with your friends, a conglomeration of this community, similar and identical in nature like Muslim Personal Law Board. If any assistance required, you take his number. He is the person who can guide you for all this. Take it forward that way, and the way the flag has been taken forward, I am sure, don't relax. Keep on, reverizing all these issues, taking it forward to the people who are unaware about the Muslim law, custom, culture, and their religious affairs. Take it forward to them and make them aware through these roundtable conferences. Inshallah, we will definitely win this exercise that has been carried out in the Supreme Court. Inshallah. Thank you so much. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now